بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. درود پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا جو قانون اس کائنات کے اندر جاری ہے، واقعاً وہ ہر اس انسان کہ جو اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کے لیے باعث تعجب ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کی آخری لمحات کے لیے پروردگار عالم اپنے بابرکت مہینے کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر خوش قسمتی یہ کہ وہ شخص چاہے مرد ہو یا خاتون، اگر وہ اس بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں ہو اور اس حالت میں وہ پروردگار عالم سے ملاقات کرے تو واقعاً اس کے اجر کا تصور کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ پروردگار عالم نے کسی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کا اجر معین نہیں ہے. آپ نماز کے لیے پڑھتے ہیں کہ اگر گھر میں پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، مسجد میں جائیں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، 10 بندے اگر مسجد میں ہوں گے تو اس کا اتنا ہے، اس سے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن روزے کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا جَزَاؤُهُ، اور اس کی جزا فقط میں اللہ ہوں. کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کے خد و خال سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں، اس کا فقط انسان کو پتہ ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے. اور اس اخلاص کی وجہ سے اس عبادت کا اجر بھی پروردگار عالم نے بہت زیادہ رکھا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو اسی حوالے سے کیونکہ 2 دن بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام صلی علی محمد وآل قیامت کا دن ہے. تو آئیے امام کی نگاہ میں ماہ مبارک رمضان کیا ہے. اور میں عرض کرتا ہوں کہ معصومین کی جو روایات ہیں یا کلام الہی واقعاً یہ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیات انسانوں پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے. اور اسی طرح جو محمد وآل محمد کے فرامین ہیں وہ بھی انسان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اب ہم ماہ مبارک رمضان کو کیسے دیکھتے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، اور امام کی 2-3 جملے ہیں، اس میں غور فرمائیے گا کہ امام کے نزدیک ماہ مبارک رمضان کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ
जअल शहर रमज़ान मिज़मारा लिखल्क़िह। मिज़मार कहते हैं उस मैदान को कि जिसके अंदर घोड़ों का मुकाबला होता है। अब यहाँ पर इमाम ने क्या फरमाया कि माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा मैदान है कि जिसके अंदर परवरदिगार आलम ये चाहता है कि अपनी मखलूक का क्या है मुकाबला देखे। किस चीज़ का मुकाबला? फयस्बिकूना फीहे बिताअतिही इला मरज़ातिह, कि जिसके अंदर उसकी मखलूक एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश करती है। किसके जरिए? बिताअतिही, अल्लाह की इताअत के जरिए, इला मरज़ातिह, अल्लाह की मर्जियों को हासिल करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर इस जुमले में परवरदिगार आलम ने, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक कानून हमें फराहम किया कि अल्लाह की मर्जी किससे हासिल होती है। मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी किससे हासिल होती है? बिताअतिही, अल्लाह की इताअत के जरिए अल्लाह की इंसान मर्जी हासिल कर सकता है। तो गोया क्या है कि ये माह मुबारक रमज़ान, इसमें हर इंसान को एक दूसरे पर सबकत हासिल करनी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए। किस चीज़ में? अल्लाह की इताअत के जरिए अल्लाह की मर्जी को हासिल करना चाहिए। और वाकई जब अर्ज़ किया कि अहले बैत की जितनी रिवायात हैं वो कुरान ही की तफसीर है, और जब ये रिवायत मैंने पढ़ी तो कुरान की कौन सी आयत हमारे जहन में आनी चाहिए? वही कि वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह, और लोगों में से कोई ऐसा भी है कि जो अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। और वो हस्ती कौन है? वो फकत मौलाए कायनात की हस्ती है। एक दफा बुलंद आवाज से दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और वाकई कुरान कहता है कि रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ी चीज इस कायनात के अंदर, अगर परवरदिगार आलम पूछता है मुझसे पूछते हो, मुझ खालिक से पूछते हो, तो मैं कहता हूँ कि रिज़वानुम मिनल्लाहि, अल्लाह को राज़ी कर लेना और अल्लाह की मर्जी को खरीद लेना, ये सबसे बड़ी सआदत है। और इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर किन का मुकाबला है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मर्जियों को खरीदता है। और उसका तरीका भी मासूम ने बयान फरमा दिया कि कुछ लोग इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर ऐसे हैं कि जो दूसरों पर सबकत ले जाते हैं। किस चीज़ में? अल्लाह की इताअत में, और उसके बदले में परवरदिगार आलम उन्हें क्या अता करता है? अपनी खुशनुदी अता करता है। तो यहाँ पर फिर इमाम आखिरी दो जुमलों में नतीजा बयान करते हैं कि जो इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को समझता है, और मैंने जुमे में अर्ज़ किया था कि मौलाए कायनात ने यकम माह मुबारक रमज़ान को मस्जिद कूफा में खुतबा दिया, जिसके हम्दो सना के बाद पहला जुमला यही था कि परवरदिगार आलम ने इस माह मुबारक को तमाम महीनों पर फजीलत दी है। और मिसाल क्या दी थी? तफ़ज़लना अहलल बैत अला साइरिन नास, जैसे हम मोहम्मद वाले मोहम्मद को तमाम मखलूक़ात पर बरतरी हासिल है, इसी तरह इस महीने को तमाम महीनों पर बरतरी हासिल है। तो अब देखें कि मासूम को कितनी फजीलत है। एक मासूम का हम क़यास नहीं कर सकते अपनी ज़ात के साथ या गैर मासूम के साथ। तो वाकई हमें इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मतों को समझना चाहिए। एक दफ़ा दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दिया कि जब मौलाए कायनात
की फजीलत बयान न की हो। जब भी मौका मिला तो रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात की फजीलत बयान की। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि फ़ज़्लु अली इब्न अबी तालिब अला हाज़िहिल उम्मा, कि मौलाए कायनात को इस पूरी उम्मत पर वही फजीलत हासिल है का फ़ज़्लुल कुरान अला साइरि शुहूर, जैसे माह मुबारक के रमज़ान को बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है। जैसे कोई महीना माह मुबारक के रमज़ान की बराबरी नहीं कर सकता, ना उसकी रातें माह मुबारक के रमज़ान के रातों की बराबरी कर सकती हैं, ना उसके दिन, ना उसकी एक एक पल जो है वो माह मुबारक के रमज़ान की बराबरी नहीं कर सकता। तो याद रखना कि ऐ इंसानों, कभी भी ये ना सोचना कि कोई भी इंसान मौलाए कायनात की किसी जिहत में बराबरी कर सके। अलीउल मुर्तज़ा क्या है? हर जिहत में अगर शुजाअत में देखेंगे तो उनका कोई सानी नहीं है, सखावत में देखेंगे तो उनका कोई सानी नहीं है। गर्ज जितने सिफात आप तसव्वुर कर सकते हैं, कभी भी किसी इंसान को किसी सिफत में मौलाए कायनात के बराबर भी न समझना। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, सुलेमान, नाराए हैदरी। तो वाकई हमें इन दिनों से गफलत में नहीं रहना चाहिए। सूरह काफ में कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, कि तू जब इस दुनिया में था तो तू क्या है? अगर हम तत्बीक करें आज के दिनों में कि तू माह मुबारक रमज़ान की अज़मतों से गाफिल था। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुकल यौमा हदीद, तो आज हमने तुम्हारी निगाहों से पर्दा हटा दिया है, आज तेरी नज़र बहुत तेज़ है। हदीद लोहे को कहते हैं, यानी बहुत तेज़ है तुम्हारी निगाह। आज तू उन चीज़ों को भी देख सकता है जो दुनिया में, जिन पर तुम्हारी मादी ख्वाहिशात ने पर्दे डाल दिए थे। तो वाकई अगर हम माह मुबारक के रमज़ान की अज़मत को देखें और फिर हम अपना किरदार देखें कि हम इससे कितना इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, तो वाकई एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो माह मुबारक रमज़ान के अंदर रोज़ा रखने का क्या समझते हैं कि हम नहीं रख सकते, हमारी ये ताकत नहीं है, उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं की और इतनी बड़ी सआदत से वो महरूम है। जबकि इस रोज़ा के अगर आप तिब्बी फ़वाइद भी देखें तो इसके तिब्बी फ़वाइद में कि इंसान के पहले 2 दिनों में इससे थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन उसके बाद जो अगला हफ्ता या 10 दिन है उसके अंदर इंसान की जो वाफिर चर्बी है वो पिघलती है। और आखिरी इशरे के बारे में ये है कि इंसान की जितनी कुव्वतें हैं, सोचने की, समझने की सलाहियत, वो इस हद तक बढ़ जाती है कि वो पहले दिनों में इंसान इस कदर बुलंद फिक्र का हामिल नहीं होता। तो इंसान का जो आखिरी इशरा है उसकी कुव्वत भी बहाल हो जाती है, जिस्मानी भी और रूहानी तौर पर भी। तो वाकई अगर हम माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों से दूर हैं तो हम बहुत बड़ी जिस्मानी और रूहानी जो परवरदिगार आलम इस महीने के अंदर हमें फैज़ देना चाहता था, उससे भी हम क्या है दूर हो जाएंगे। तो इस इन चंद लम्हों के अंदर वाकई हम अगर गौर करें इसी आज के महफिल के तवस्सुत से कि हम माह मुबारक रमज़ान की फजीलत को दर्क कर सकें, कि जैसा अर्ज़ किया कि इस माह मुबारक रमज़ान को बाकी महीनों पर भी वही फजीलत है जो मौलाए कायनात को बाकी तमाम इंसानों पर फजीलत हासिल है। तो ये तमाम रिवायात हमें इस माह मुबारक रमज़ान की अज़मत वो बता रही हैं कि इस महीने के अंदर हम गफलत और सुस्ती न करें, बल्कि जिस कदर ज़्यादा हम बरक़ात हासिल कर सकते हैं इस माह मुबारक रमज़ान के अंदर, हमें वो बरक़ात हासिल करनी चाहिए। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस 2 जुमले मसाइब के ज़्यादा नहीं पढ़ सकता।
इसी माह मुबारक की 10 रमज़ान मुबारक को एक माँ के जो उम्मुल मोमिनीन तमाम मोमिनीन की माँ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का दिन था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बीबी की वसीयत के 2 जुमले और फिर उसके बाद इसी ताहिरा बीबी की ताहिरा बेटी की वफ़ात के वक्त का तज़किरा करना है कि जब जनाब खदीजा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अल्लाह के रसूल को उन्होंने चंद वसीयतें की। सबसे पहले ये कहा कि या रसूल अल्लाह इन्नी क़ासिरतुन मिन हक़्क़िक, कि अल्लाह के रसूल मैंने आपकी वैसी खिदमत नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। मैं अपनी तकसीर का एतराफ़ करती हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है खदीजा जैसे तूने मेरी खिदमत की है तूने हक अदा कर दिया है खिदमतों का। दूसरी वसीयत बीबी ने फरमाई अल्लाह के रसूल उसी का बिहाद ही मैं आपको इस बच्ची की वसीयत करती हूँ, और इशारा किया जनाब सैयदा की तरफ कि मेरे बाद कुरैश की कोई खातून मेरी बेटी के साथ ज़्यादती न करे, तकलीफ न दे। और यहाँ पर हत्ता यहाँ तक कहा कि कुरैश की कोई खातून मेरी बेटी को तमाचा न मारे। इस वसीयत का अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में तो पूरी कोशिश की, लेकिन जब यही वसीयतें बलाए कायनात को की गई तो वाकई मौला की क्या हालत होगी कि जब बीबी को गुस्ल दे रहे हैं तो अली की चीखें बुलंद होती हैं। अली के जिस्म पे ताज़ियानों के निशान देख के अली रोते हैं कि बाज़ ऐसे निशान थे कि फातिमा ने मुझे अली को भी नहीं बताया। और वाकई एक मसला भी पूछा जाता है कि आया हम जो अपने अजीज़ व अकारिब का बाज़ों का इंतज़ार करते हैं कि वो आएँ और मैयत को देख लें, तो जो उलमा इस्तदलाल करते हैं वो इसी रिवायत से करते हैं कि जब बीबी का जनाजा तैयार हुआ तो मौलाए कायनात ने इमाम हसन हुसैन और दोनों बच्चियों को कहा कि आओ अपनी माँ से अलविदा कर लो। और उस वक्त तमाम आए लेकिन इमाम हुसैन मजलूम नहीं आए। तो वो बीबी के जो जिंदगी में जिस हाथ को हरकत नहीं दे सकती थी उसी हाथ को मौलाए कायनात इमाम हुसैन की तरफ फैला के कहती है हुसैन बेटा तू भी अपनी माँ से अलविदा हो ले। और तारीख कहती है कि जब इमाम हुसैन अपनी माँ के सीने के साथ लगे हैं तो एक ऐसा कोहराम मदीने में बर्पा हुआ है। हत्ता हातिफ गैबी से आवाज आई है अली माँ और बेटे को जुदा करो कि अर्श का माहौल भी इसी तरह है जैसे मदीने का माहौल है। तो आप तसव्वुर करेंगे मौलाए कायनात ने इमाम मजलूम को अपनी माँ से कितनी मोहब्बत से जुदा किया होगा। लेकिन इमाम हुसैन का जो आखिरी लम्हा था, इमाम हुसैन के जब रूह परवाज कर चुकी थी तो इमाम हुसैन की एक बेटी जिसे हुसैन के सकीना के नाम से पुकारते थे, कहते थे सकीना मेरा सकून है, जब वो इमाम हुसैन के जिस्म के साथ चिपकी हुई थी तो उस वक्त शिब्र मलऊन ने इतने मजलूम जुल्म के साथ उसे एक बेटी को अपने बाप से जुदा किया कि तारीख में हम वो अल्फाज जिक्र नहीं कर सकते। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता मोहम्मद और उनकी पाक आल का वास्ता मेरे अल्लाह हमारी ये कलील सी इबादत अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा, हमें इसका अजर अज़ीम अता फरमा। मेरे अल्लाह हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे वालिदैन के सगीरा व कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा। परवरदिगारा तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता मोहम्मद और उनकी पाक
जलाल का वास्ता हमारे जितने मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मगफरत फरमा, उन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा, बिलखसूस इस मरहूमा के दरजात बुलंद फरमा, उन्हें जवारे फातिमा में जगह अतायत फरमा। परवरदिगारा तुझे अपने इज़्ज़त व जलाल का वास्ता अगर इस मरहूमा के ज़िम्मे कोई गुनाह हो तो परवरदिगार आलम तू अपनी वसी रहमत के ज़रिए उन गुनाहों से को बख्श दे और उनसे दरगुदर फरमा और इन्हें आला इल्लीयीन में जगह अता फरमा। परवरदिगार यहाँ पर इतने हाज़रीन मौजूद हैं, इनकी नेक दिली ख्वाहिशात पूरी फरमा, इन तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कबूर को मोहम्मद व आले मोहम्मद के नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार हमें इस माह मुबारक रमज़ान में अपने जितने मरहूमीन हैं उनके लिए तोशाए आखिरत भेजने की तौफीक अता फरमा, उनकी अरवाह को सवाब इरसाल करने की तौफीक अता फरमा, सदक़ात व खैरात की सूरत में, कुरान मजीद की तिलावत की सूरत में, और परवरदिगारा सबसे बढ़कर के कि हमें इस माह मुबारक रमज़ान में अपनी मग़फ़िरत पक्की करवाने की तौफीक अता फरमा। जब ये माह मुबारक रमज़ान गुज़रे तो हमारे गुनाहों को भी तू बख्श दे, और जब इस माह मुबारक रमज़ान का आखिरी दिन हो तो परवरदिगारा हमारे कंधों पर गुनाहों का बोझ न हो। परवरदिगारा हमारी दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। एक दफ़ा मिलके इस मरहूमा के सारे सवाब के लिए और तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास